Hello, good morning. Good morning, sir. How are you? Assalamu alaikum. Walaikum assalam, rahmatullah, barakatuh. How are you, my dear? Fine, sir. Well, Okay, Fine, sir. okay. Who are you? Rahim Abdullah. And I think Altamash is also there. Yes, sir. Musaffa is also there. Hello. Okay, No, sir. okay. Just I'm going to begin my classes. Day before yesterday, we were discussing about the nationalism first. We discussed. Just I am going to recall. And then after, we discussed about First World War, Khilafat Andolan, means Khilafat movement, and after that, the non-cooperation movement. These all are the parts of our this first lesson, and that is nationalism in India. Today, and up to the Satyagraha, page number 54, we were discussing last, idea of Satyagraha, which Mahatma Gandhi taught to the people of South Africa while he was there in South Africa, near about 21 years, and he spent there. And he fought for with the racist regime of South Africa. Colonial government was there, and there was a lot of atrocities like India also. So Mahatma Gandhi taught this lesson to the people of South Africa. So today we are going to study and begin a new chapter, that is not new chapter, new paragraph, new point. So that is the Rowlatt Act. We know very well from class 8, class 9 also we discussed. To some extent, we know from the very beginning that Rowlatt Act, naam se zahir hai, Rowlatt was the name of the judge, Sidney Rowlatt. He introduced this act through the British Imperial Council on 6th or 5th May 1919, and it was implemented in all over the country. According to the leaders of India, it was a black law. It was a black law because according to this law, the British Army, British police got the enormous right to arrest any Indian for 2 years without any trial, without any reason, without any offense, but only that Indian, he or she, just cannot demand for the independence of India. So it was the law, Rowlatt Act, and which was against the independence movement of India. According to this law, there was no any room for the independence or regarding talk about the independence from the British counterpart. So it was a Rowlatt Act. So it was introduced in India on 5th or 6th April, 1919. Mahatma Gandhi and other leaders also took this law as a black law and very angry. Indian leaders were very angry, even the common people were angry because they were not ready to accept this law, Rowlatt Act. So just after 1 week, near about 13th April 1919, due to this Rowlatt Act, the people gathered there to protest against this act at Jallianwala Bagh in Amritsar, Punjab. And the same day, there was a Baisakhi festival also, which is celebrated throughout Punjab on the eve of the harvesting of the new crop. So that was the day also. So they gathered. They were quite unknown what is happening in and around the park, Jallianwala Bagh.
So they were innocent people of the adjoining areas. So they gathered there to protest against the law. But the British administration imposed curfew in those areas. And it was quite unknown. The people were quite unknown that the curfew is already imposed there. The British Army and the commander of British Army, General Dyer, was there. He imposed the curfew, and there was a lot of confusion among the innocent people of Punjab. Anyhow, the meeting started. Meanwhile, General Dyer, the commander of British Army, closed all the exit points of the garden, and there was only one. Yes, any question, please? Any question? No, sir. Okay. So there was only one door or exit point, means the door was open, and General Dyer ordered to open fire. British Army opened fire, and hundreds of people died and hundreds of injured. But it is the confusion. Just some book already mentioned thousands of people died and thousands. But anyhow, it is true that the people. It was a massacre, Jallianwala Bagh massacre, in which several people were died and injured. So it was condemned by all the leaders in India. And so it was then. Meanwhile, a day before yesterday, I was talking about the Khilafat movement, which happened after the end of the First World War. And this incident, this just after Khilafat movement, this Rowlatt Act was, and Jallianwala Bagh episode happened. So these were the reasons why Mahatma Gandhi decided to launch the non-cooperation movement. Now just we are going to page number, it was the Rowlatt Act is page number 55, and now page number 56, we are now going to discuss here about the why non-cooperation. Yes, it is page number, I have the book here also, Rowlatt Act 55 page number and 56 page number. It is the why non-cooperation. Yes, we have to understand now non-cooperation. हम सब जानते हैं कि भारत में या कहीं भी अगर कोई सरकार चलती है तो कॉपरेशन से चलती है. अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है. We all the people of India, we are cooperating with the administration and the government and the police administration and also with the civil administration. There is no confusion because that is the only one way कि हम इसको इस वायरस से हम बचाएं. So it is a cooperation which we are just cooperating with the government or administration. But it was also known to the Mahatma Gandhi and other leaders that British India, the colonial rule is established in this country with the cooperation of the people. When the people will not cooperate with the government and with the police or with the administrative officers, so they can't run the government, they can't run the country. So it was felt by and it was fact, it was felt by Mahatma Gandhi and other leaders. So Mahatma Gandhi decided, and other leaders also gave consent to launch movement, non-cooperation movement, because Mahatma Gandhi felt that if we will not cooperate, India will not cooperate with the British government, there is no question to run the government, and the government will be paralyzed. Government will failure if the people will not cooperate. So it was decided to launch or to start or to begin the non-cooperation movement. So under this non-cooperation movement, some things were decided to do. Number one, to surrender the titles which were delivered by
the British government to the Indian leaders like महात्मा गांधी या फिर किंग ये सरहदी गांधी जिनको हम कहते हैं, फ्रंटियर गांधी, मतलब वो खान अब्दुल गफ्फार खान, and so many leaders were there at that time, which they decided to surrender in the first instance these titles. So, and second one was to boycott the foreign goods. Third was to adopt the Indian-made items, to start to use Indian-made items. And the fourth one was the students and of colleges and schools were requested to boycott the classes. The lawyers already boycotted the courts also. The employees, they boycotted their offices also. And the common people boycotted to the liquor, foreign liquor, शराब, ये सारी चीजें होने लगी. तो ये डिसाइड हुआ कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, जो 1921 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया. अब सवाल आता है, व्हाई नन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाई नॉट द अदर मूवमेंट, नाम क्यों दिया गया इनका? तो नन कोऑपरेशन वाज बिकॉज if the government, if the people, common people of India will not cooperate with the British government, it is but natural that British government can't run the government. वो पैरालाइज हो जाएगी, मैं जिसे कहते हैं माजूर हो जाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी. तो इसलिए नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ. लेकिन हमने परसों भी बताया था कि जितना भी महात्मा गांधी का ये सिस्टम चला भारत को आजाद कराने का, ये सारे सिस्टम थे ऑन द बेसिस ऑफ नन वायलेंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द वायलेंस. बिकॉज सत्याग्रह में उन्होंने पाठ पढ़ाया था साउथ अफ्रीका में, और इंडिया में आने के बाद जो 3 जगह गए थे, जो मैंने परसों बताया था, 1916, 1917 और 1918 में, कि हम नन वायलेंस काम करेंगे, कोई भी हमारा वायलेंस नहीं होगा, तशद्दुद नहीं होगा, इसमें तशद्दुद बोलते हैं, और कोई भी हिंसा की कोई भी बातें नहीं होंगी. लेकिन यहाँ पे गोरखपुर में चौरी चौरा नाम की एक जगह पे हिंसा की घटना हो गई, जिसमें 22 ऑफिसर्स ब्रिटिश मारे गए, थाने को जला दिया गया, लूट लिया गया, उनके हथियार भी लूट ले गए. गांधी जी इससे काफी डिसअपॉइंटेड हो गए, और गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नन कोऑपरेशन मूवमेंट विद द खिलाफत मूवमेंट, और इस तरह से ये दोनों का मामला खत्म हुआ. हम यहाँ पर ये भी बात समझाते हुए चलें कि इसमें इकोनॉमिक लॉस बहुत हुआ. हमारे पास में इकोनॉमिक लॉस किसका हुआ? ब्रिटिश का. क्योंकि लंबे समय तक तो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे. उसके बाद हमने परसों देखा था कि किस तरह से टैक्स लगाया. जब तक वो परेशान नहीं थे और वार में इतने अखराजात नहीं हुए, तो टैक्स क्यों लगाया? और ये टैक्स लगाने के बाद सारी चीजें उनकी तबाह बर्बाद हो गई. इकोनॉमिक जो 102 करोड़ का वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, है ना, इंपोर्ट कर रहे थे, जो इंपोर्ट काफी घट गया, क्योंकि यहाँ पर इंडियंस दे बाइकॉटेड टू यूज द फॉरेन गुड्स. उसमें शराब, कपड़े और बहुत सारी चीजें, रोजमर्रा की जरूरतें, जो जरूरतों की चीजें थी, वो सब उन्होंने बंद कर दिया. तो ये घट के 102 करोड़ से 56 करोड़ ये हो गया. इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बड़ी खराब हो गई. ये बहुत बड़ा पहलू बना, और इस तरह से नन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा चला. अब यहाँ पे हम आते हैं, पेज नंबर हमारे पास में 58 में है. 58 को पेज नंबर को हम सिर्फ देख रहे हैं, बाकी चीजें आपको हम बताएंगे. एंड ऑन सत्याग्रह, द मूवमेंट इन द टाउन्स. अब यहाँ पे हमें देखना है कि मूवमेंट इन द टाउन्स में कि नन कोऑपरेशन का इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत पड़ा. टाउन में क्या हुआ ये हम देखेंगे इसको. अभी मूवमेंट इन द टाउन्स में क्या हुआ कि ड्यूरिंग दिस मूवमेंट गांव में, कंट्री साइड और टाउन दोनों में फर्क है. गांव के लोग दे वेयर क्वाइट अननोन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द मूवमेंट. शहर के लोग क्योंकि लीडर्स आते रहते थे तो वो थोड़ा जानते थे, समझते थे. तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन लोगों ने गुडाउन्स को भी लूटे. हालांकि ये ट्रेनिंग नहीं दी गई थी महात्मा गांधी या इनके लीडर्स की तरफ से, लेकिन माहौल बदल गया और इन लोगों ने लूटा. उनके वेयर हाउस को लूटे गए, उनके ग्रेन्स के गुडाउन्स लूटे गए,
शराब की दुकानों को जला दिया गया, ये सारी चीजें होती रह गई। तो मूवमेंट्स इन द टाउन एंड मूवमेंट इन द अर्बन एरियाज ऑल्सो, दोनों का कंपेयर भी कभी कभी आता है हमारे क्वेश्चन में कि व्हाट हैपेन ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, व्हाट हैपेन इन द रूरल एरियाज एंड व्हाट हैपेन इन द कंट्री साइड एरियाज। तो अर्बन एरियाज और कंट्री साइड एरियाज में, तो ये हमारे पास में मुख्तलिफ अंदाज में लोगों ने इसको लिया। शहर के लोगों ने इस आंदोलन को कुछ अपने ढंग से लिया, गांव के लोगों ने अपने ढंग से लिया। यहाँ तक कि कुछ जो शहर में लोग थे उन्होंने ये भी समझा कि वेरी सून वी आर गोइंग टू बी गेट लिबर्टी, हमें आज़ादी मिलने वाली है, बहुत जल्द आज़ाद हम हो जाएंगे और उसके बाद फिर ये हमारे शासन जो है हमारा, ये अंग्रेजी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हम फ्री हो जाएंगे। ऐसा सिलसिला हमारा चला। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि ये मूवमेंट इन द टाउन, मूवमेंट तो चला, लेकिन मूवमेंट में टाउन में हमारे पास में अल्टीमेटली जलने वाला बात तो हमने कर ही लिया है। फ्यू कांग्रेस मेंबर्स, एक सेकंड, जहन में सवाल भी रखना अपना अपना, है ना। कोई अगर बीच में पूछना भी हो, वाई1 कॉर्पोरेशन ने हमने किया डिस्कस अभी। और अच्छा हाँ, परसों कुछ नोट्स दिए गए थे, वो किया आप लोगों ने? हेलो, परसों कुछ नोट्स दिए गए थे ना? अप टू सत्याग्रह, सत्याग्रह तक। आवाज सुनाई नहीं देती थी? यस सर, किए थे ना। हाँ, तो जहां तक मैंने पढ़ाया था उसका नोट्स मैंने दे दिया था कि समझ में बात बाज़ाब्ता आ जाए, है ना। यस सर। हाँ, तो वो हुआ था। यस सर, कर लिए थे। हाँ ठीक है, आप लोग ये भी करके आइए, कुछ पूछना हो तो वो अपना पूछा भी कीजिए बीच में, कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ाई हो रही है। ओके सर। हाँ इंशाल्लाह। द मूवमेंट इन द टाउन्स, देखिए मैं यहाँ पर मूवमेंट टाउन्स जो हमारा 58 पेज नंबर में मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट ने टाउन में, तो जाहिर सी बात है स्कूल थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटियाँ थी, यूनिवर्सिटी कम थी उस जमाने में, तो स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर कॉलेजेस, लेफ्ट देयर स्कूल्स, लेफ्ट देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको सबको उन्होंने, वही चीज़ है जो मैंने बताया। और उसके बाद में टीचर्स ने भी अपने स्कूल को छोड़ दिया, कॉलेज को छोड़ दिया, और लॉयर्स ने बैकआउट किया, यही सब हुआ। उसके बाद में इकोनॉमिक फ्रंट पर इसका असर पड़ा, जो मैंने बताया अभी, 102 करोड़ का जो एक्सपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था, माल आ रहे थे इंग्लैंड से और वो बिक रहे थे यहाँ पर, इंडियंस चूंकि खरीद रहे थे, इसलिए काफी बड़ा एक टारगेट चल रहा था। वो ट्रांजेक्शन हमारा घट करके 56 करोड़ पे हो गया। उसी तरह से हमारे पास में इंपोर्ट यहाँ दिया भी हुआ है। उसके बाद द मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन, धीरे धीरे शहर में मूवमेंट की ताकत कम होती चली गई। उसकी वजह थी कि जाहिर सी बात है कि दोनों ने अलग ट्रेन, कल परसों मैंने एक चीज बताई थी कि गांधी जी ने पूरे नॉन कॉपरेशन हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, गांधी जी ने एक बात को महसूस किया और दूसरे लीडर्स ने भी किया कि प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी इन्हें, तब तक ही हम कामयाब नहीं होंगे। और इसीलिए चौरी चौरा वाला जो कांड हुआ, जो हादसा हुआ, जो वाकया हुआ, ये नहीं होगा। तो उसके बाद रिबेलियन इन द कंट्री साइड है, द मूवमेंट इन द सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन, यही है इसमें। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू का नाम आता है, ताल्लुकदार वगैरह जमींदारों पर अटैक हुआ। तो मैं अभी जरा सा इस पे किताब भी एक नज़र में खाली देखूं कि आगे का पॉइंट क्या है, जिसको मैंने डील करना है 58 से पेज नंबर 59। पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 में हमारे पास में है रिबेलियन। उसी में 58 में रिबेलियन इन द, रिबेलियन किसे कहते हैं पता है अल्तमश? रिबेलियन किसे कहते हैं? रिबेल रिबेल वर्ब है हमारा, है ना। रिबेल वर्ब है। किसी बात से को हम अगर नहीं माने, हम रिबेल करें, उसका शिद्दत के साथ उसका एगेंस्ट करें, विरोध करें, दैट इज द, विरोधी बोलते हैं। रिबेलियन असल हिंदी का शब्द विरोधी ही हुआ, और वो रिबेलियन इन द कंट्री साइड, तो कंट्री साइड में भी रिबेलियन हुए। यही हम यहाँ पे देखेंगे कैसे हुए रिबेलियन। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश के ज़माने में जब से आए, यानी 1857 के बाद स्पेशली,
90 ईयर्स का मैंने अक्सर बताया, क्लास 8 में बताया, 9 में बताया कि 90 ईयर्स का जो टाइम रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, बड़ा ही खौफनाक रहा है, जिसे हम कह सकते हैं रेन ऑफ टेरर भी बोल सकते हैं। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक हम लोगों ने 9th में पढ़ा था एक वर्ड 1793 टू 1794 एज ऑफ वो हम ये कह सकते हैं उसे रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर, REIGN, रेन कहते हैं शासनकाल को, टाइम जमाना, और टेरर तो कहते हैं टेरराइज करना, किसी को डराना धमकाना। तो ये 90 साल का जो इनका हुआ है ब्रिटिश का जो एक टाइम, ये काफी रेन ऑफ टेरर रहा है। नए नए कानून बने, इसमें तो उसी में 1919 का ये रॉलेट एक्ट भी है, और बहुत सारे कानून हैं, 1935 का, 1918 का है, 1913 का भी एक एक्ट है, बहुत सारे कानून बने थे जो हम लोगों ने 8 में भी पढ़ा है। तो इन सब को समझते हुए ये एक मोटे मोटे तौर पे ये समझना हमें कि देयर वाज अ लॉट ऑफ एट्रोसिटीज ऑन द इंडियन citizen when they came to India and when they became the ruler of India। आए तो थे वो व्यापारी बनकर के, ट्रेडर बनकर, लेकिन आफ्टर सम टाइम दे बिकेम रूलर ऑफ इंडिया। तो जब से रूलर बने तब से उन्होंने इस तरह का एक माहौल बनाया जिसमें, तो इसमें रिबेलियन जाहिर सी बात है। अभी आपने देखा, अब हम तो खैर यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन आपने देखा कि कानून को, अगर CAA का मामला आपने देखा, NPR का देखा, और इसका देखा, तीनों कानून, तो इन सब कानून में क्या हुआ, रिबेलियन। अगर यही दिन तो वायरस चला आया तो ये मामला ये हुआ, अदरवाइज जो माहौल चल रहा था, अगर ये माहौल बना रहा था और गवर्नमेंट इसको जबरदस्ती इसको नाफिज करना चाहती, इम्प्लीमेंट करना चाहती, तो रिबेलियन पैदा हो जाती। यही होता है, कोई भी गवर्नमेंट अगर सख्ती से किसी काम को करना चाहती है, अगर कंसेंट नहीं लेती है आवाम का, आवाम नहीं चाह रही है, तो वहाँ रिबेलियन पैदा होते हैं, और यही आगे चल करके टेररिज्म को बढ़ावा देता है, जो हमारी दुनिया में हो रहा है। आज अमेरिका परेशान, पूरी दुनिया में अमेरिका ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, पूरी दुनिया। सर रिबेलियन क्या होता है? रिबेल किसी का इख्तलाफ करना, वर्ब है ये, यानी किसी का विरोध करना। और रिबेलियन विरोधी, समझ गए आप? विरोधी, हाँ, विरोध करने वाला, खिलाफ करने वाला, मुखालिफ। तो ये जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चला, तो गांव में हमने शहरों का देखा कि शहरों में तो लोगों ने बाइकआउट किया। जो प्रोग्राम बना था कि द स्टूडेंट एंड द टीचर्स दे बाइकआउटेड देयर स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आल्सो, द लॉयर्स दे बाइकआउटेड द कोर्ट आल्सो, एंड द कॉमन पीपल आल्सो बाइकआउटेड टू यूज द फॉरेन गुड्स आल्सो। तो ये तो शहरों में हुआ, लेकिन यहाँ गांव में रिबेलियन हुआ। यहाँ पर होते थे ताल्लुकदार, और से समझना, जमींदार को ही हम बोलते हैं, बड़े बड़े जमींदार होते थे। तो इन लोगों ने क्या किया था, ब्रिटिश हुक्मरानों ने, कि जमींदार को इन लोगों ने टैक्स और रेवेन्यू वसूलने की जिम्मेदारी दे दी थी। अब किसी इलाके से उनको लोग ना जाएं, वही वसूल के दे दें, एक साल में एक बार उनको वो एक मुश्त दे दें। तो इससे क्या था कि जुल्म ज्यादती ज्यादा बढ़ गई। वो ऑफिसर्स तो रहे बाहर, लेकिन ये जो जमींदार थे, ताल्लुकदार थे, इन लोगों ने इस पर जुल्म करना शुरू किया। अब उपज नहीं हुई है, ग्रेन नहीं हुआ, फैमीन हो गया, सूखा पड़ गया, फिर भी इन्होंने उसको उससे वसूलना शुरू किया। इनके लोग जाते थे और जमीन को हथिया लेते थे, गल्ला उठवा लेते थे, तो इस तरह की ज्यादती होती थी। तो ये जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ तो रिबेलियन यहाँ पर पैदा हो गए, और यानी गांव के अंदर, क्योंकि इन लोगों ने, गांव वालों ने टैक्स देना, जब अब सूखा पड़ गया, उसी बीच में काफी फैमीन हुआ। फैमीन तो चल रहा है 1923 से बाज़ाब्ता पर 1929 और 1930 तक फैमीन हुआ है इंडिया में, और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हुआ। इसलिए हम क्लास 9 में जर्मनी वाले में पढ़ा था हम लोगों ने कि डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929, और ये सबसे बड़ा दुनिया का डिप्रेशन अब होने वाला है कोरोना वायरस के वजह से। सबसे बड़ा डिप्रेशन, किसी ने सोचा नहीं होगा वो डिप्रेशन कितना होगा, क्या होगा। अब खत्म हो चुका सब कुछ। कोई सोच नहीं सकते थे कि पूरी ट्रक भर करके आप ले जाओ क्रूड ऑयल, तेल, पेट्रोल, आपको पैसे भी दे रहा है। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं उनके पास में इतना प्रोडक्शन है कि अभी इस वक्त में, चूंकि सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद है, कोई अखराजात हो नहीं रहा है, प्रोडक्शन अपनी जगह पे है,
कितना कम करेंगे प्रोडक्शन को कम किया गया, फिर भी उसकी कीमत और हमारे यहाँ उसकी कीमत अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये इकोनॉमी को हम लोगों ने खुद अपने हाथ से फिनिश किया, तबाह बर्बाद कर लिया है। और इसीलिए ये क्राइसिस जो आने वाली है, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये बहुत बड़ी क्राइसिस आने वाली है। अल्लाह रहम फरमाए हम लोगों पर। तो ये रिबेलियन स्टार्ट हुआ, इन लोगों ने लूटा, उनके गुदानों को लूटा, उनके इसको लूटा, उसके बाद टैक्स देना बंद कर दिया, कहा कि आप जाओ, उसको मारते भी थे, पीटते भी थे, टैक्स नहीं देंगे। नतीजा ये हुआ कि नन कॉपरेशन में ये लोग टैक्स देने को ये सोचा कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे तो हुकूमत चलेगी नहीं, हुकूमत को भी पैसे की जरूरत है, वर्ल्ड वार एंड हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो इसीलिए इन लोगों ने भी रिबेलियन पैदा हो गए और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ये देना मुनासिब नहीं समझा और टैक्स में इन लोगों ने कटौती करना कहा कि टैक्स अच्छा इंक्रीज भी। मैं परसों बता रहा था कि पहली बार भारत में इनकम टैक्स लागू किया गया, पहली बार। तो इसीलिए बहरहाल ये सब हुआ। हाँ, वो लोग जो जिनको जो है बेगार कहते हैं, विदाउट वेजेस, अगर आपको काम करवाया जाए, आपको पैसे नहीं दिया जाए तो ये बेगार होता है। तो बेगार वर्क लैंडलॉर्ड करवाते थे, उससे भी रिसेंटमेंट बढ़ा, उससे भी काफी मुखालफत बढ़ी और इस तरह से रिबेलियन या नन कॉपरेशन मूवमेंट का गांव पे। अब ये प्लांटेशन की बात आ रही है, पेज नंबर 60। यहीं के बाद हम इसको ये करेंगे आपको कि ये हमारा कि स्वराज वो सब हमारा जुड़ा हुआ, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया आपको ये सत्याग्रह के बाद से रिबेलियन और ये नन कॉपरेशन मूवमेंट सब जुड़ा हुआ है। अब प्लांटेशन को समझ लो आप जरा गौर से। What happened into the plantation? प्लांटेशन कहते हैं बड़े एरिया में जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, जैसे कि हमारा टी गार्डन, कॉफी गार्डन है ना, ये बागान होते हैं, बड़े बड़े बागान होते हैं, जो ब्रिटिश सरकार ने कुछ एक्ट बना करके बागानों के लिए लिया था, लेबर्स को बागानों के लिए लिया गया था। और तो उसी को हम कहते हैं प्लांटेशन। ये प्लांटेशन बड़े बड़े एरियाज में थे, लेकिन प्लांटेशन का 1869 के रूल के मुताबिक, जो लॉ के मुताबिक प्लांटेशन का था कि एक बार अगर एग्रीमेंट करके कोई लेबर वहां चला जाता है या लेबर्स जाते हैं काम करने के लिए, तो वहां पर वो उन्हीं की मर्जी जब तक रहेगी प्लांटेशन ओनर्स की, तब तक वो काम करेंगे, अपनी मर्जी से लेबर नहीं आ सकते। लेकिन जब नन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तो प्लांटेशन, स्वराज इन प्लांटेशन का हमारा वो हेडिंग है। इसका मतलब ये हुआ, स्वराज कहते हैं आजादी को, इंडिपेंडेंस को। प्लांटेशन वर्कर्स ने समझा कि नो we got liberty now, our India is independent, got independence। ये क्या आ रहा है बीच में, एरर आ रहा है। हाँ, तो ये उन लोगों ने इसको दिया, वहां से निकल गए, स्वराज इन प्लांटेशन वहां से निकल गए। निकलने के बाद इन लोग पकड़े गए, इनको सजाएं हुई और सजा होने के बाद इनको ये भी किया गया कि कई जगह पे ये लोग तो पहुंच गए, कभी कभी कहीं पहुंच गए करीब के गांव में, लेकिन ज्यादातर लोग पकड़े गए। और पकड़ने के बाद हाँ, ये भी था कि जैसे हमारा ये आंदोलन एंड होगा तो महात्मा गांधी ये जमीन जो है गरीबों में तकसीम कर देंगे, बांट देंगे। तो इट वाज जस्ट कंफ्यूजन एमंग द प्लांटेशन वर्कर्स। तो ये स्वराज इन प्लांटेशन में हम यहीं तक देखेंगे। और भी स्वराज इन प्लांटेशन को हमारा इंपॉर्टेंट नहीं, एक दिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको बताते लास्ट में हम इसकी लिस्ट भी लेंगे, इसमें बनते हैं कितने क्वेश्चन हमारे पास में, और इसी नोट से वो क्वेश्चन भी निकाले जाएंगे हमारे पास। हम देख सकते हैं स्वराज इन प्लांटेशन का एक चौड़ी चौड़ा में जो कांड हुआ था, उसकी तस्वीर भी हम पेज नंबर 61 पे देख सकते हैं। और कुछ नहीं था इसमें, स्वतंत्र भारत। ये क्यों आ रहा है, रनिंग आउट ऑफ टाइम कहाँ, भी तुम्हारे पास टाइम है भाई, है ना अल्तमश? 7 मिनट है सर। कितने तुम लोग और कौन कौन से बैठ से कुछ पता है? और अच्छा, ये भी चेहरा तो आ रहा है भाई, हमारे अशरफ खान भी हैं, और कौन है, अल्तमश फिरोज भी हैं, राबिया परवीन। अच्छा, राबिया परवीन, यानी वो दोनों बहन जो है वही ना? यस सर।
अरे जमाना न हो गया जी, ये वायरस ने सबको दूर कर दिया है। नहीं, अब आ रहा है आपके पास में, अब नए सिरे से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं डिस्कस करके आपका एंड करूंगा, राइट, है ना। वो क्या है इंपॉर्टेंट, हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और से समझिएगा। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको हिंदी में समझ लो ऐसे आप कि सभी ने, हिंदी का शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी सभी ने अवज्ञा आंदोलन। एक होता है ओबे करना, जैसे हम लोग बराबर कहते हैं वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर टीचर्स, नहीं, जैसे ये कहा जाए कि भाई आप पढ़ने के औकात में ना घूमें, अभी तो खैर घर में ही कैद रहना है, तो हम वी शुड ओबे द टीचर्स ऑल्सो, वी शुड ओबे द पेरेंट्स और एल्डर्स। तो ओबे और डिसओबे दोनों दोनों अलग अलग है, दोनों एंटोनिम एक दूसरे का। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने ये देखा कि अब तो ट्रेनिंग तो दी नहीं गई और हमने आंदोलन शुरू कर दिया, और बीच में 5-6 साल का एक वक्फा, एक गैप रहा। तो फिर एक बीच में सॉल्ट कानून बना दिया अंग्रेजों ने, सॉल्ट का कानून। ये सॉल्ट का कानून बड़ा ही खतरनाक था कि इंडियंस कैन नॉट मैन्युफैक्चर द सॉल्ट। तो महात्मा गांधी ने देखा कि कानून तो बहुत कुछ बनाया इन्होंने, लेकिन ये जो सॉल्ट है ये अमीर और गरीब दोनों के प्लेट में, दोनों के थालियों में होता है, इसलिए इशू को लेकर के और आगे बढ़ा जाए और फिर से इकट्ठा किया जाए और उनके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ माहौल बनाया जाए, यानी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। तो देन महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च कहते हैं बिगिन को, स्टार्ट को, उसी का सिनोनिम है, टू लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल कहते हैं नागरिक को, हम तुम जैसे पब्लिक है इसको कहते हैं आम लोग, इसको सिविल। तो सिविक डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी एक पहले था, देखो दोनों में फर्क। और एक क्वेश्चन यहीं पे मैं बताता चलूंगा कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे 10th में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, व्हाट वाज द या व्हाट इज द आता है, कोई मुश्किल नहीं है, बिटवीन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये क्वेश्चन बहुत खास होता है और जिसको हम करा देंगे और हमारे नोट्स में रहेगा, वो आगे जो नोट्स हमारा मिलता रहेगा उसमें रहेगा इंशाल्लाह वो। तो ये नॉन कोऑपरेशन था पहले, गौर से समझना कि सिर्फ इंडियन विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश काउंटर पार्ट, और यहां पर था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी डिसओबे, नो वी विल नॉट ओबे योर लॉ, इंडियंस विल नॉट ओबे योर लॉ, आपके कानून को नहीं मानेंगे, हम कानून को तोड़ेंगे, है ना, यही था। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए महात्मा गांधी ने कमर कस ली और ये मामला हुआ। इसमें 2-4-5 बातें बड़ी अहम हैं, इसी को हम कहते हैं, और से समझना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इज इक्वल टू, इज ऑल्सो नोन एज द सॉल्ट मार्च। नंबर 1, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज द दांडी मार्च। ये 3 नाम से जाने जाते हैं, कोई किसी में फर्क नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑल दीज 3 आर इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड और इंटर एसोसिएटेड विथ ईच अदर। सब एक दूसरे से बिल्कुल एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं, इसमें कुछ नहीं है, अलग से कोई बात भी नहीं है। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। महात्मा गांधी स्टार्टेड दिस आंदोलन और दिस मूवमेंट फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। दांडी इज ए कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात and there is a distance of 240 miles. It is from Sabarmati Ashram to Dandi, 240 miles. Gandhi ji traveled 10 miles, 10 miles per day, and he reached there after 24 days, Dandi. There were 78, ये 2-4 बातें जो मैंने पॉइंट बताई हैं उसी में ये भी है कि दांडी 240 किलोमीटर है साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी ने सॉल्ट का इसलिए सिलेक्शन किया बिकॉज इट वाज यूज्ड बाय द रिच पीपल एंड द पुअर पीपल आल्सो, इट वाज वेरी कॉमन इशू, देयरफॉर ही डिसाइडेड टू लॉन्च द सॉल्ट मार्च। नंबर 3 कि साबरमती आश्रम, चूंकि उनका आश्रम था इसलिए उन्होंने डिसाइड किया वहां से करना। 78 पीपल पार्टिसिपेट, उनके फॉलोवर्स 78 फॉलोवर्स से उन्होंने स्टार्ट किया। हालांकि आगे चल करके ये ज्यादा हो गए, इसमें मिडिल क्लास विमेन ने भी पार्टिसिपेट किया और वो भी इसमें आगे आई, और जो मिलते रहे ये काफिला इनका बढ़ता चला गया। उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि आफ्टर रीचिंग दांडी दे महात्मा गांधी बॉइल्ड द सी वाटर, यही वो लफ्ज आता है हमारे इसमें भी है, टेक्स्ट बुक में भी देख लेना कि पेज नंबर 60 में कि बॉइल्ड द सी वाटर,
है ना, क्योंकि दांडी तो कोस्टल टाउन है, सी वाटर को इन्होंने गर्म किया एंड मैन्युफैक्चर्ड द सॉल्ट एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ, यहीं पे एंड हो जाता है। और जैसे ब्रोक किया सॉल्ट लॉ का, ब्रोक हमारा V2 है, ब्रोक द सॉल्ट लॉ, द नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड। वही पॉइंट है जहां से कि हम आपने कानून बनाया और हम कानून को नहीं मानेंगे, वी विल ब्रेक द लॉ, और हमने कानून को तोड़ा, वी हैव ऑलरेडी ब्रोकन द लॉ, और यहीं से मामला हमारा अलग हो जाता है और यहीं से शुरुआत होती है। अब ये खबर जैसे जाती है इंडिया के कोने कोने में और लोगों ने कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। कहाँ तो था कि सॉल्ट लॉ को, लेकिन लोगों ने और भी कानून को तोड़े। वहां भी प्लांटेशन से भी लोग फिर भागने लगे थे, बड़े बड़े प्लांटेशन थे जहां पर हजारों की तादाद में इंडियंस काम कर रहे थे, वहां से भी उन लोगों ने भागना शुरू किया। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, और उसमें एक ही क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द, जो इसमें होगा ही आगे दिया गया होगा टेक्स्ट में, कि डिफरेंस बिटवीन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस। तो दोनों को एक साइड हम लिखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हेडिंग में, एक साइड लिखेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और यहाँ पर भी हमारे 4 से 5 पॉइंट होंगे कि 1920-21 में शुरू किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इधर हम करेंगे कि 1930 में शुरू किया गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यहाँ हम करेंगे टू बायकॉट द फॉरेन गुड्स एंड नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश काउंटरपार्ट वी स्टार्टेड, और गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और यहाँ पे हम लिखेंगे टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तीसरा पॉइंट में हम यहाँ लिखेंगे, जब डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं, कि ड्यूरिंग द मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन में the school and colleges were boycotted by the teachers and the students, and the lawyers also boycotted the courts also, and the common people their offices. ये सारी चीजें हुई। Even they